I think this first is over now, everyone. Yes, ma'am. Amphoteric oxides. Amphoteric oxides over. No, ma'am. Just check. Not over. No, Okay. ma'am. Okay, okay. Now everyone listen carefully. The concept of amphoteric oxides. Amphoteric oxides are what? These are the metal oxides. Listen carefully. Amphoteric oxides are the metal oxides shows both the nature acidic as well as basic in nature. Generally what we know, all metal oxides are basic, but some metal oxides behaves as acidic and basic depending on with what substance they are getting combined. For example, look at the screen. There are two amphoteric oxides you have in your syllabus, aluminium oxide एंड जिंक ऑक्साइड. ठीक है, अब ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं कि एसिडिक भी बिहेव करेंगे और बेसिक भी बिहेव करेंगे. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ड्यूअल नेचर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स. So if the metal oxide, aluminum oxide, reacts with acid in the first equation, everybody look at the first equation. So in this reaction also, the salt and water are produced. So whenever acid reacts with the bases, the reaction gives out salt and water. ये हमें पता है. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? एसिड HCl है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बेस है और बन रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर. तो इसको हमें इमेजिन कैसे करना है कि HCl इज एन एसिड एंड द रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर. तो ये रिएक्शन कब होती है? जब एसिड और बेस में रिएक्शन होती है. सो इन द फर्स्ट केस एल्यूमिनियम ऑक्साइड शोज बेसिक नेचर, क्योंकि बेसिक और एसिडिक रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. सो यहाँ पे ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है. इट मीन्स इसका नेचर क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए. सो इन द फर्स्ट इक्वेशन aluminum oxide shows basic nature of it. In this case, it is behaving basic in nature. ये clear हो गया सबको? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Boys, is it clear to boys? मधुर है क्या? Is मधुर here in the meeting? मैम. हाँ मधुर, आपको समझ में आया है बेटा? यस मैम. हाँ. सेकेंड इक्वेशन देखो. इन सेकेंड इक्वेशन मेटल ऑक्साइड सेम है, ऊपर जो था वही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, बट इन दिस केस हमने यहाँ पे क्या लिया है? बेस यूज किया है, NaOH. Then too, the reaction produces salt and water. फिर भी हमें रिएक्शन सॉल्ट बना के दे रही है और वाटर बना के दे रही है. It means in the second case, the same metal oxide shows acidic nature. क्योंकि अगर ये एसिड है और ये तो बेस ही है, तो एसिड बेस रिएक्शन से मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर. So second reaction shows that the nature of aluminum oxide is acidic. In first case, it is basic. In second case, it is acidic. So same metal oxide shows both the nature. That's why aluminum oxide is considered as amphoteric in nature. It is an amphoteric oxide. Means when it reacts with the acid, it behaves as a base. And when it reacts with the base, it behaves as an acid.
Is it clear, all the students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so इसके अलावा apart from aluminum oxide, there Zinc. is a one more metal oxide. Yes, very good. Zinc That is oxide. zinc. Very good. Zinc oxide. तो इसके भी रिएक्शंस हम देख लेते हैं कैसे हैं. फर्स्ट, पहले जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे एंड देन विद द बेस. सो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. You know very well, children, when metal oxides reacts with acid, सेकेंड चैप्टर में हमने देखा है क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. तो वाटर के लिए ये दो चीजें निकाल लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बचा जिंक क्लोराइड. सो ZnCl2 बनेगा प्लस H2. सो ये वाले केस में क्या हो रहा है, इन दिस केस द जिंक ऑक्साइड इज Basic बिहेविंग nature. एज, वेरी गुड, वेरी गुड. अगर ये एसिड है तो इसका नेचर फिर कैसा होगा, बेसिक होगा. और यहाँ पे बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर. Now in the second equation, instead of acid, we will carry out the reaction of same metal oxide with base. तो समझो मैंने जिंक ऑक्साइड ले लिया, सेम मेटल ऑक्साइड, अब मैं बेस के साथ रिएक्शन करूंगी. अब अगर ये बेसिक बिहेव हो रहा है तो ये एसिड बिहेव करेगा. अब यहाँ पे सॉल्ट बनेंगे, वाटर के लिए निकाल लो, फिर यहाँ पे बचेगा ZnNaNO, तो ये बनता है Na2ZnO2 जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट एंड वाटर बनेगा. So these are the reactions of amphoteric oxides. There are two amphoteric oxides in your syllabus, aluminium oxide and zinc oxide. This both the oxide shows both nature, acidic as well as basic, depending on whether they are combining with acid or bases. Is this clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. पहले हमने मेटल का रिएक्शन देखा है ऑक्सीजन के साथ. नाउ सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर है कि आपने एक मेटल ले लिया और आपने उस मेटल को वाटर में डाल दिया तो क्या होगा. ओके, सो लेट अस डिस्कस. सो चिल्ड्रन, some metals, they reacts with cold water, some metals reacts with hot water, and some metal reacts with the steam, while some metals do not show reaction with water. तो कौन से है, क्या क्या है, कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे. Now children, do you know there are three states of water? Water exists in three different forms: solid form, that is ice; liquid form, that is liquid water; and gaseous form, that is steam. Now those metal who reacts with the ice cold water, एकदम ठंडे ठंडे पानी से भी रिएक्ट हो जाते हैं, they are categorized as highly reactive Highest metal. reactive. Yes, very good beta, very good रेणुका. Highly reactive metal, they are very 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 reactive, क्योंकि वो जब रिएक्ट होते हैं ना तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि कोल्ड वाटर को वो डायरेक्ट उबालने लगती है, उसको बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है स्लोली स्लोली. सो ये ऐसे मेटल है कि ये स्टीम के साथ तो रिएक्ट होंगे ही, हॉट वाटर के साथ तो रिएक्ट भी होंगे, बट फिर भी ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा ये हाईली रिएक्टिव है. सो कौन से है वो मेटल्स? सो लुक एट द स्क्रीन. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. अब इन तीनों की रिएक्शन हम देखेंगे. सबसे पहले सोडियम. व्हेन मेटल सोडियम इज प्लेस्ड इन ए वाटर, व्हेन मेटल सोडियम इज प्लेस्ड इन ए वाटर, क्या बनता है देखो. फॉर्मेशन ऑफ NaOH टेक्स प्लेस.
means metal reacts with water to form metal hydroxides. metal hydroxides बनते हैं क्योंकि OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, और ये है मेटल सोडियम, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड along with production of hydrogen. तो ये बात हमेशा याद रखो कि whenever we add metal into the acid, whenever we add metal into the water, the reaction produces hydrogen gas. Observe all the equations written on the screen. All equation produce hydrogen gas. All reaction produces hydrogen gas. So when you add metal to the water, the reaction evolves hydrogen gas and produces metal hydroxides. अब इसका हम छोटा सा एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड जब बनते हैं या फिर सोडियम और पोटेशियम हो, इनको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now all of you observe this animation. Here you can clearly see when the metal sodium is placed in a water, what happens? The reaction produces heat, along with hydrogen is also produced, and the heat is enough for sodium to catch the fire. So आप देख सकते हैं कि सोडियम को हमने ऐड किया है और धीरे धीरे क्या किया, इसने H2 प्रोडक्शन स्टार्ट किया और हीट प्रोड्यूस हुआ और उसकी वजह से ये मेटल सोडियम क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है. दिख रहा है आपको फ्लेम, एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So the metal sodium catches the fire when it reacts with water. साथ में हाइड्रोक्साइड्स भी बनेंगे. एक और एनिमेशन है, इसको देखिए. ये देखिए हमने मेटल सोडियम ऐड किया है. सी हाउ द हीट इज प्रोड्यूस, और नीचे जो भी सेटल हो रहा है दैट इज NaOH. ऑब्जर्व इट. Metal sodium is placed in a water, heat is produced and NaOH is produced at the base. So NaOH synthesize हो रहा है, ऊपर H2 evolve हो रहा है. Got this, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Is this PDF visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Okay. Right. So metal like sodium, metal like potassium, metal like calcium, they reacts with cold water. Okay, to produce NaOH, hydrogen is evolved and the reaction produces heat. The heat is generated in this reaction. So ये हुआ सोडियम का. Can you write in the same way for potassium? Who will tell me what is the reaction for potassium? Yes, ma'am. Ma'am, may हाँ I बोलो tell? चंचल. चंचल will say. Potassium plus H2O gives out KOH plus H2 release. Very good. Plus. Yes, very good. Plus heat. So children, this is the reaction of metal potassium with water that produces potassium hydroxide. H2 is produced and heat is produced. In the same way, look at the next equation. Calcium. When metal calcium is added to water, it also produces its corresponding hydroxide, that is calcium hydroxide, and H2 is released. Now these are the three reactions which shows the reaction of metal with cold water. तो ये तीनों जो रिएक्शन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे कैसे हैं? These all reactions of metal
विथ कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे भी ये सेम रिएक्शन आपको शो करेंगे। ठीक है, अब दूसरे मेटल के पास जाते हैं, मैग्नीशियम। ये देखो ये मैग्नीशियम। अब ये जो मैग्नीशियम है, अगर आप इसको कोल्ड वाटर में डालोगे, so there will be no reaction. When magnesium metal is placed into cold water, there will be no reaction. But children, when you heat the water, when the water is warm or hot, then it start reacting with it. फिर मैग्नीशियम क्या करेगा, उस हॉट वाटर से अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो क्या बनेगा, सेम चीज बनेगी, उसके हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे and H2 is produced. Same. When magnesium reacts with hot water, magnesium hydroxide is produced and hydrogen is evolved. Clear है सबको this two reaction with cold water and hot water? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bhavik, is it clear to you, Bhavik? Yes, ma'am. Good. अब क्या होता है, स्पेशली इन केस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर आपने इसको भी देखा होगा सोडियम को, अभी ये मैंने आपको एक एनिमेशन शो किया। क्या होता है, जब ये मेटल हम वाटर में ऐड करते हैं ना, सो दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने अभी जो एनिमेशन देखा, उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि मेटल फ्लोट कर रहा था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Exactly in the same way, when metal, calcium and magnesium are added to water, they also floats on water. Why? Because the reaction produces hydrogen. So hydrogen bubble gets stick to the metal surface, और gases की density कम होती है, आपको पता है, और जिनकी density कम होती है, they moves like gases, they evolve upward, and the substance whose density is less that floats on water. तो एक्चुअल में कैल्शियम मैग्नीशियम की डेंसिटी कम नहीं है, वो सॉलिड है, उनकी डेंसिटी ज्यादा ही होगी, बट when this hydrogen bubble gets stick to the surface of the metal, they brings the metal to the surface of the water, वो उसको ऊपर ले आते हैं, क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा पावर है कि वो इवॉल्व होते हैं तो वो ऊपर आते हैं, तो साथ में वो मेटल को भी ऊपर ले आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट you can observe the metal start floating on the surface of water. Got this concept, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Madhur? Yes, ma'am. किसी को रिपीट करके चाहिए? Okay. Now children, apart from this three reacts with cold water, this one react with hot water. अब बाकी के जो है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, they neither react with cold water nor with hot water. ना वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। फिर वो किससे रिएक्ट करेंगे? दे रिएक्ट्स विद अ स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर, स्टीम के साथ, जिसमें बहुत ज्यादा हीट होती है। इन 9th स्टैंडर्ड you learn that steam contain more amount of heat which is called latent heat than the water of same temperature. तो अगर मैंने हॉट वाटर लिया जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और मैंने स्टीम लिया जिसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बट इसमें हीट ज्यादा होगी, स्टीम में हीट ज्यादा होगी। सो वो जो हीट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन ऑफ दिस मेटल्स विथ इट, जो कि कोल्ड वाटर के साथ पॉसिबल नहीं है, हॉट वाटर के साथ भी पॉसिबल नहीं है। सो ये जो मेटल है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, उनको रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे डाला गया है। पहले ये है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, हॉट कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट हो जाएंगे, इसलिए सबसे टॉप में है। फिर मैग्नीशियम उसके नीचे है, एंड देन एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now how this reaction takes place, let us see with one experimental setup.
Wait, I'm sharing my screen. Is this image visible, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. अब देखो यहाँ पे क्या क्या लगता है. फॉर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप वी नीड 2 टेस्ट ट्यूब्स. दिस इज वन, दिस इज सेकेंड वन. We need one strand with a clip to hold the test tube. Rubber cork we need. Delivery tube we need. Beaker containing soap solution we need. And of course Bunsen burner. इसके अलावा रिएक्शन किसमें है? रिएक्शन है मेटल और स्टीम में. तो हमें स्टीम जनरेट करनी है और हमें मेटल यूज करना है. सो ये मेटल कोई भी हो सकता है, लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, या तो फिर जिंक भी हो सकता है. ठीक है. अब ये वाटर की स्टीम हम कैसे क्रिएट करेंगे? सो फॉर दैट वी हैव टू यूज ग्लास वुल. हमें क्या यूज करना है? ग्लास वुल यूज करना है. अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप सबने तो कॉटन देखा होगा. कॉटन सबको पता है. If I dip cotton into the water and if I keep it aside, then what will happen? जब मैं कॉटन को वाटर में डीप करूंगी और जब मैं उसको साइड में रख दूंगी तो क्या होगा? ऐसे ही बस इस साइड में रख दिया मैंने तो क्या होगा? क्या वाटर उसमें वैसे के वैसे सोक रहेगा या वो सीप आउट Will होके dry. बॉटम में चला जाए? Will dry. ओके. It will dry क्या होगा? quickly. ठीक है. सबसे पहले क्या होगा कि वो कॉटन समझो ऐसा है, ऐसा कॉटन का मैं एक छोटा सा पीस लिया है, उसको वाटर में सोक किया. धीरे धीरे क्या होगा कि उस कॉटन में से जो वाटर है वो ऐसे नीचे के डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और पूरे फ्लोर पे ऐसा पानी पानी जमा हो जाएगा. ये चीज ग्लास वूल के साथ नहीं होगी. इसका जो वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है ना, वो कॉटन से ज्यादा है. सेकेंड थिंग, जब हम कॉटन के पीस को यहाँ पे रखेंगे फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम हीट करेंगे तो हो सकता है कि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता जाए, ये बचा हुआ कॉटन जो है वो जल जाए. हो सकता है कि वो ड्राई हो जाए, सूख जाए. ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉटन वूल और any material which is made up of any क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट फाइबर बोल सकते हैं या फिर डेलिकेट फाइबर बोल सकते हैं. ऐसा कुछ यूज करने के अलावा हमने यूज किया है ग्लास वूल. ठीक है. ग्लास से बना हुआ एकदम पतले 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक मटेरियल होता है. तो हम क्या करेंगे? इस ग्लास वूल को पहले वाटर में सोक कर लेंगे. वाटर में क्या करेंगे? इसको सोक कर लेंगे और वाटर में इसको सोक करने के बाद हम इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे इस तरीके से. फिर उसके बाद हम यहाँ पे मेटल ऐड कर देंगे, जो भी हमें यूज करना है, लाइक आयरन हो, एल्यूमिनियम हो या फिर जिंक हो, कोई भी हो. फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे और उसको स्टैंड पे पैक कर देंगे. एंड देन वी विल हीट द ग्लास वूल फ्रॉम आउटसाइड. अब धीरे धीरे क्या होगा? हीट अंदर जाएगी, वाटर बॉइलिंग स्टार्ट होगी एंड ग्रेजुअली द वाटर वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग. अब वाटर वेपर ऊपर तो नहीं जा सकती क्योंकि जगह ही नहीं है, टेस्ट ट्यूब क्लोज है. So water vapor will start moving in this direction and they comes in a contact with the metal placed here. So gradually the reaction between metal and steam, जिसका फॉर्मूला यही होगा H2O, takes place. तो क्या बनेगा देखो. In this reaction metal oxides are formed. तो Fe के केस में बनता है Fe3O4 plus H2 is produced. सो Fe3O तो यहीं पे बन जाएगा, Fe3O4 तो यहीं पे मेटल के पास बन जाएगा. बट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा दैट मूव्स इन दिस डायरेक्शन थ्रू डिलीवरी ट्यूब. इट एंटर्स द सोप सॉल्यूशन एंड यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ soap bubbles of hydrogen. When you will bring burning mastic or burning candle near it, it burns with popping sound. It burns with popping sound. And hence we can conclude
that the gas produced is hydrogen, and you can observe the metal oxides are produced here. Metal oxides, not metal hydroxides. When metal react with the steam, metal oxides are produced. और जब स्टीम के साथ नहीं रिएक्शन हो रही थी, पहले इक्वेशंस कोल्ड वाटर से हो रही थी या फिर हॉट वाटर से हो रही थी, तब हाइड्रोक्साइड्स बन रहे थे, OH वाले कंपाउंड. बट व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द स्टीम, oxides are produced. Got this concept, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now everybody look at these equations. Aluminium. Aluminium reacts with the steam form of water to form aluminium oxide. Hydroxides नहीं बनेंगे, steam के साथ oxides बनेंगे, and H2 is produced. When Fe reacts with steam, that is gaseous state of water, then oxide of iron is produced, which is magnetic iron oxide. इसका नाम है magnetic iron oxide. और अगर सिर्फ Fe2O3 होता है ना, उसको सिर्फ आयन ऑक्साइड बोलते हैं, उसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. फेरिक ऑक्साइड, ये डिफरेंस आप समझो. Fe2O3 होगा तो उसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड. Fe3O4 है तो मैग्नेटिक आयन ऑक्साइड और H2 प्रोड्यूस होता है. Right? So these are the reaction of metal with the steam. Is this clear, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Madhur, is it clear to you? Yes, ma'am. Good. Next reaction. Third chemical property of metal. Reaction of metal with acid. And you all are very much familiar with this. See what happens in this reaction. When metal reacts with acid, the reaction produces salt and hydrogen gas. तो हम थोड़ा सा एसिड चेंज करते हैं अभी. जिंक ले लिया और H2SO4 ले लिया. हमें पता है कि रिएक्शन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही. So just remove hydrogen from here and join the remaining substance. Zinc sulfate salt is produced plus hydrogen gas evolved. अब आप मुझे बताओ क्या फॉर्म होगा. Mg plus H2SO4. Tell me the products. MgSO4 plus H2 release. Evolved. Yes, both of you very good. Chanchal and Renuka. MgSO4 बनेगा plus H2 produce होगा. Okay. So whenever the metal reacts with acid, salts are formed and hydrogen gases evolve. And this reaction we discussed in first chapter as well as in second chapter of chemistry. Third में वापस repeat हुआ है. Metal plus acid form salt and hydrogen gas. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Now children, next reaction. Reaction of metal with solution of other metal salts. मतलब यहाँ पे आपने जो मेटल कंसिडर किया होगा रिएक्शन में, तो यहाँ पे आप किसी दूसरे मेटल का सॉल्यूशन लेंगे. मतलब देखिए कैसा है. फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई भी एक मेटल बताओ जो आपको पसंद है. टेल मी. Copper. कॉपर. ओके, कॉपर ले लिया. तो इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. दूसरा कोई मेटल और उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन. तो दूसरा कोई मेटल मतलब आपको कॉपर नहीं लेना है वापस. कॉपर छोड़ के दूसरे कोई भी मेटल का सॉल्ट ले लो. तो आप मुझे एग्जांपल बताओ. FeSO4. ओके, FeSO4 ले लिया क्योंकि Fe ये दूसरा मेटल है. देखो अदर है, कॉपर तो नहीं है ऑफ कोर्स, दूसरा मेटल है और इसका सॉल्ट.
जैसे कि फेरस सल्फेट ले लिया। फेरस के और कौन से सॉल्ट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। फेरस सल्फेट हो सकता है, फेरिक क्लोराइड हो सकता है, फेरिक ऑक्साइड हो सकता है, फेरिक नाइट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे जो इजी लगता है, जो इजी इजी हमें लगता है, हम बोलेंगे। समझो हमने सल्फेट ले लिया। चलो, अब हमें देखना है कि भाई इनमें रिएक्शन होगी या नहीं होगी। वी हैव टू चेक इट। सो हाउ वी विल चेक? सो फॉर दैट वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई मैंने जो मेटल लिया है, क्या वो ये सॉल्ट में से किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर पाएगा, सो देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर नहीं कर पाएगा, सो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो चेक करते हैं। तो मेरे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, ठीक है। उसमें सबसे पहले है पोटेशियम टॉप में, जो नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। द टॉपेस्ट पोटेशियम कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल प्रेजेंट बिलो इट। फिर उसके बाद है सोडियम। सोडियम कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स प्रेजेंट इन इट्स बिलो साइड। मतलब जो भी मेटल है, वो उसके नीचे के सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, बट ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि ये सोडियम ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। जो ऊपर होता है वो नीचे वाले से हमेशा हाईली रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, potassium is highly reactive than sodium. Sodium is highly reactive than calcium. Calcium is highly reactive than magnesium. जो भी जिसके ऊपर है, वो नीचे वाले सब से हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये ऊपर की रिएक्शन अब जरा देखो और जरा मुझे बताओ कि कैन कॉपर डिस्प्लेसेस आयन? इनकी लोकेशंस पहले No, फाइंड ma'am. आउट करो। No, ma'am. कॉपर कहाँ है? ओके, Copper कॉपर is कहाँ है? highly देखो, reactive than Ma'am, Fe. ओके, कॉपर की पोजीशन देखो। कॉपर नीचे है और आयन कहाँ है? ऊपर है। लॉजिक क्या है? ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, है ना। आयन कैन डिस्प्लेस कॉपर, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयन। तो ऊपर की रिएक्शन वैसी है, कॉपर अलोन है, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस Fe, so there will be no No reaction. reaction. Yes, there will be no reaction. This is how you have to understand this फोर्थ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ही है ये, बस इसको दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, बस वर्ड चेंज कर दिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, मतलब ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो फॉर दिस यू हैव टू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा ऊपर कौन है, नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। फटाफट इसको लर्न कर लेना, एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको फटाफट बोलते आना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टीन, कॉपर, इस तरीके से फटाफट फटाफट एकदम फास्ट बोलते आना चाहिए। इस तरीके से आपका ये लर्न चाहिए। सो ये रिएक्शन क्लियर हो गया सबको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear. Yes, ma'am. वेरी गुड। सो ये थे हमारे 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, सिर्फ हेडिंग्स देखते हैं अभी। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, मतलब ही ऑक्सीजन। सेकेंड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ऐसे 4 रिएक्शंस है। Now let us move towards the next topic. यहाँ तक हो गया हमारा, लास्ट पेज है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके लिए मैं मेरा कैमरा शेयर कर रही हूँ। तो ये प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसका हेडिंग क्या है देखिए जरा। Now the topic which we are going to learn is reaction of metal
विथ नॉन मेटल। क्या है ये रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखिए, वी डिस्कस इन दिस टेबल कि व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक we have to learn about the chemical properties of metals and non-metals. कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं आपको बताऊंगी. Then you will be able to solve the question based on this topic. Wait. Is it visible? Yes, ma'am. Good. अब क्या करना है आपको? कुछ चीजें आपको लर्न कर लेनी है. The very first, metals. Metals loses electron. Metal loses electron. सबसे पहला पॉइंट. And once they loses electron, they get positive charge. जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उनके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन द मेटल. अंडरस्टूड एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल, मेटल सोडियम. व्हेन मेटल सोडियम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो मेटल सोडियम के ऊपर आ जाएगा चार्ज सिंगल प्लस. एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 प्लस आएगा. मेटल कैल्शियम. मेटल कैल्शियम लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो कितने प्लस आएंगे? 2 plus. वेरी गुड, 2 प्लस. ओके, लाइक दिस मेटल्स गेन्स पॉजिटिव चार्ज. इसलिए मेटल्स को क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. मेटल्स को बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है? हम बोलेंगे क्या उसको कि जा रे भाई सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, चलो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो. वी विल नॉट डिसाइड. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ दोज मेटल डिसाइड्स. अब आप पूछोगे कि मैम ये क्या है, तो ये आपका 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन? एक करके बताती हूँ. सोडियम का बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, वो है 11. मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उसका मतलब है. अब हम क्या करेंगे, ये 11 इलेक्ट्रॉन्स को उनकी शेल की कैपेसिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो एटम्स में शेल होते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, आगे भी होते हैं पी, एल, एम, ओ, पी, क्यू. ठीक है, हमें सिर्फ 4 पढ़ने हैं. सो मैक्सिमम ये जो के शेल होता है ना, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैन फिट इन के शेल. तो 11 में से 2 चले गए, कितने बचे? 9. ओके, 9 लेफ्ट. बट आउट ऑफ 9, एल शेल कैन अकोमोडेट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन. इसमें सिर्फ 8 ही बैठ सकते हैं. तो 9 में से 8 चले गए, बचे कितने? 1. 1. वेरी गुड प्राजक्ता, वेरी गुड. सो 1 जो है वो चला जाएगा नेक्स्ट शेल में, वो चला जाएगा नेक्स्ट शेल में. ठीक है, सो ये हो गए 11. देखो 8, 8 प्लस 2 9, 10, 10 प्लस 1 11. दिस इज हाउ 11 इलेक्ट्रॉन्स गेट डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो ये जो सोडियम है इसमें एन शेल है ही नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अभी खत्म हो गए. ठीक है, अब देखो बेटा, अब लॉजिक कैसा होता है. हमें पता है कि मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना,
उतने इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करते हैं। बहुत सिंपल है। कोई भी मेटल हो, उस मेटल के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वो एटम लूज करता है। कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम, atomic number of calcium is 20, so distribute 20 electrons shell wise. K shell can accommodate 2, L can accommodate 8, M में भी हमें 8 ही लिखने होते हैं मैक्सिमम। 8 कितने हो गए? 8 + 8 16, 16 + 2 18, 20 में से 18 हो गए, 2, हाँ 2 बचे हैं, 2 चले जाएंगे आपके लास्ट शेल में, ये हो गए 20। याद रखो K में 2, L में 8, M में 8 बचे हुए N में चले जाएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ी चीजें यहाँ पे लर्न करनी है आपको। एटॉमिक नंबर लर्न करना है सबसे पहले, और आपको हर एक शेल की कैपेसिटी लर्न करनी है, वो भी बहुत इजी है। फर्स्ट की 2 है, L की 8 है, M की भी 8, यहाँ पे 8 ही लिखना है उसमें इलेक्ट्रॉन, बाकी के जो बच जाते हैं वो लास्ट शेल में चले जाएंगे। एंड व्हाट आई टोल्ड यू, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पर्टिकुलर एटम लूजेस। तो कैल्शियम लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कैल्शियम, दैट्स व्हाई कैल्शियम गेट्स +2 चार्ज। सो मेटल कोई भी हो, वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये डिटरमाइन करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। दिस मीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम लूजेस, एंड दिस मीन द नंबर ऑफ प्लस चार्ज द एटम गेन्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। नॉन मेटल Yes, का ma'am. एग्जैक्टली उसके, हाँ नॉन मेटल का एग्जैक्टली उसके उल्टा होगा, एग्जैक्टली उल्टा होगा। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? मेटल लूजेस Gain इलेक्ट्रॉन, electrons. हाँ तो उसका आएगा गेन करते हैं, निगेटिव चार्ज लेते हैं, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स एटॉमिक नंबर, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने बताया K में 2 याद रखो, L में 8 याद रखो, बचे हुए आगे डाल दो। तो इसमें कितने बैठ सकते हैं? मैक्सिमम 8 बैठ सकते हैं, बट हमारे पास इतने है ही नहीं, उस क्लोरीन के पास उतने नहीं है। M में 8 बैठ सकते हैं, बट नाउ ओनली 7 आर रिमेनिंग, सो पुट ऑल 7 हियर। अब देखो ये क्लोरीन, ये क्या करेगा? ये नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। और कितने एक्सेप्ट करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, वेट 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 बेटा, वेट चंचल, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? उतने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्टेट मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ 8, प्रेजेंस ऑफ 8 मतलब ऑक्टेट। अब इसके लास्ट शेल में है बेटा 7, तो 7 को 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 1. 1. 1. तो क्लोरीन गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इसलिए electron. क्लोरीन के, Ma'am, हाँ हाँ यस बेटा, ma'am, one doubt is there. हाँ बोलो। Ma'am, it is up that how much it can. बोलो ना, क्वेश्चन कंप्लीट करो भाभी। मतलब वो अभी के एल एम और एन है ना, तो एल और एम की कैपेसिटी 8 है। अगर उसके आगे के एल एम एन हुआ तो फिर एन में मतलब अगर जिसमें कम है तो उतने ही ज्यादा लगेगा ना, 8 कैपेसिटी है। देखो अब इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इसमें समझो सारे शेल्स है, के भी है, एल भी है, एम भी है, एन है, एन के बाद ओ है, पी है, क्यू है, मैक्सिमम 7 शेल्स होते हैं। बट क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 ही है, तो उसमें से सबसे पहले के शेल भरा जाता है, तो उसमें 2 चले जाएंगे। एल में मैक्सिमम 8 बैठ सकते हैं, इसलिए 8 के 8 पूरे डाल दिए, सो 10 हो गए, 10 चले गए, सिर्फ 7 बचे हैं, तो वो सारे के सारे 7 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए आगे के शेल्स उसके भरेंगे ही नहीं,
आगे के सेल्स उसमें है ही नहीं। भाभी क्लियर हुआ? M7 है ना, तो 7 की जगह 8 हुए तो 8 क्यों होंगे? इसके पास है ही नहीं ना उतने, क्लोरीन के पास नहीं है उतने। वैसा कोई हुआ तो नॉन मेटल। हाँ तो बेटा, तो इसके 8 के 8 भरे जाते हैं, फिर उसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होती है। ऐसे एलिमेंट्स ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो जीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी जीरो होती है और उनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। फिर वो मेटल भी नहीं है, वो नॉन मेटल भी नहीं है, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा हेलियम, नियॉन, अर्गॉन को ले लेते हैं। ये देखो बेटा भाविक, अर्गॉन को देखो, अर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, तो 18 को डिस्ट्रीब्यूट करो K2 L8 M8, तो इसकी ऑक्टेट मतलब 8 ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये लॉस भी नहीं करेगा, ये गेन भी नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। ऐसे एलिमेंट्स किसी से भी रिएक्ट नहीं होते हैं एंड दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इज इट क्लियर भाविक? भाविक, is it clear? Hello, am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाविक आपको समझ में आया है क्या बेटा? Where are you? Are you here, भाविक? यस। ओके। सो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। एक, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल गेन्स द इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अब आपको होमवर्क क्या करना है, उसके बिना आपको फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। You have to learn first 20 elements. First 20 elements आपको लर्न करने हैं। उसमें क्या क्या लर्न करना है? उनका नेम, उनके सिंबल्स और उनका एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में। जैसे कि फर्स्ट एटॉमिक नंबर वाला होता है हाइड्रोजन, सेकेंड होता है हेलियम। तो इस तरीके से आपको ये लर्न करना है। आई विल सेंड यू द कंटेंट, यू लर्न इट, और टुमारो लेक्चर के पहले आपका वो हो जाना चाहिए। क्लियर है? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड। ओके, सो जब तक आपका ये लर्न नहीं होगा, आपको आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन समझ में नहीं आएंगे। अभी कल तो आपका फिजिक्स होगा, तो हम संडे एक्स्ट्रा सेशन लेंगे और एक्स्ट्रा सेशन में हम आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन खत्म करेंगे। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes,